Hi, we are at Windsor Park, Datt Mandir Road, Wakad. This is a 3 BHK project, and our clients had this property for the past few years, and now is when we undertook the renovation. So this is a 3 BHK flat, and the scope was false ceiling in all places, renovating all the bedrooms and the kitchen and the hall, and most importantly the kitchen. The kitchen was to be completely broken down and to be redone, and this is how it is. So my colleague Payal will take you through the entire project. Hello everyone, I am Payal. Let me take you through the entire house and let me show you the work that we have done here, the interiors of this house. Let me take you through the house. This is the entrance of the house, and here you can see we have done a beautiful paneling ply and laminate. So we have used a combination of brown and white. The white laminate is stone finish silk matte laminate, and here we have used a beautiful loop work, and we have given a beautiful profile lighting to have a very cozy look to the entrance. And you can see the nameplate. We have given some space for floral decoration in the nameplate. So come inside and show you. This is the entrance lobby. Here we have created a storage. So this acts as a shoe rack and some storage for keys and all. And here we have created a storage for the inverter, and here there is one more storage for another all the stuff. Here is one more storage to keep all the helmets and all. So this gives a beautiful look to the entrance lobby. Again, the wall of the entrance lobby has been treated by the wall trims with a golden putty in it, with a very nice wallpaper inside the wall trim, and above the ceiling has a unique stretch ceiling which gives a very welcome look in this passage. So our clients are very fond of sunrise and nature and its beauty. So we have used a very beautiful stretch ceiling which shows sunrise and lotuses in the pond, blooming lotuses in the pond. So it gives a very beautiful look to the lobby. As we move forward, here is the living room, and as you can see, we have a very cozy neutral colored, beige colored sofa over here, and a king chair, which is a very brightly colored chair, which is adding to the colors of this room. And in front of the sofa, there is a TV unit. So the paneling of the TV unit is a mix of stone finished acrylic sheet panel, and there is a storage below and a display unit at one side of the TV unit. And here we have given beautiful louvers to cover the wall entirely, which is giving a very nice look to this TV unit. Then as we move forward, here the refrigerator has been placed here because the kitchen did not have enough space to occupy the refrigerator. So we have given here a space for refrigerator, and we have created a partition, and here is a dining space, though there is no dining table right now, but we will add a dining table in future here. So the backdrop of dining table is very nicely done in fluted sheets and some artwork here and a beautiful wallpaper. The curtains and all the upholstery has been done in a matching tone. Actually मला हिंदी मिक्स करायला पाहिजे, मी सगळं इंग्लिशमध्ये. तो यहाँ पर इस टीवी यूनिट में हमने एक पूरा फुल लेंथ पैनलिंग दिया है, और इस पैनल में हमने ग्लास एक्रेलिक का यूज़ किया है, प्लस हमने पूरी वॉल को एक अच्छा सा कवरेज देने के लिए लूवर्स डाले हैं. नीचे स्टोरेज है, ड्रॉवर्स हैं जिसमें हम सब स्टोर कर सकते हैं, और ये एक अच्छा सा डिस्प्ले यूनिट है. और वी हैव गिवन सम प्रोफाइल लाइटिंग, so the display items are visible very clearly, and it gives a very good look to this display unit. और
यहाँ हमने रेफ्रिजरेटर के लिए जगह बनाई है क्योंकि किचन के अंदर जगह नहीं थी, और एक पार्टीशन देके इसको हमने एक डाइनिंग स्पेस जैसा हमने इसको सेपरेशन दिया है। तो अभी यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, बट फ्यूचर में यहाँ आने वाला है। और उसके बैकड्रॉप के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक अच्छा सा वॉल हाईलाइटिंग किया है विद अ मिक्स ऑफ फ्लूटेड शीट, ग्लास एक्रिलिक एंड वॉलपेपर। और here you can see there is a very neutral colored, beige colored sofa, and the upholstery is matching to all the decor of this room and giving a very spacious look to this living room। और ये बहुत ही न्यूट्रल बोरिंग लुक ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्राइटली कलर्ड हाई चेयर और उसके साथ में ही पफीज लिए हैं मैचिंग कलर में। दिस इज द लिविंग रूम फॉल सीलिंग। इट हैज़ बीन डन इन 2 levels। और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया है जो कि हमारे क्लाइंट ने ही सजेस्ट किया था कि उनको ऐसा लुक चाहिए है, तो उसको फॉलो करके हमने उस स्पेस में अच्छे से बिठा के उसको फॉल सीलिंग बनाया है। प्लस यहाँ आप देख सकते हो फॉल सीलिंग के इस पार्ट में वी हैव यूज्ड द पीवीसी फॉल सीलिंग, जिसकी वजह से एक अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है और डाइनिंग स्पेस के ऊपर का जो एरिया है वो डिफरेंशिएट हो रहा है उसकी वजह से, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसकी वजह से। ये किचन है और वी हैव कम्प्लीटली रिनोवेटेड द किचन। द ओल्ड प्लेटफॉर्म वाज डिमोलिश्ड और पूरा नया हमने प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है। और वी हैव यूज्ड द प्लेटफॉर्म टाइल्स हियर इन वाइट कलर, जिसकी वजह से बहुत नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है किचन में। प्लस हमने सारा जो फर्निशिंग है वो ग्लास एक्रिलिक में किया है और उसके वजह से बहुत ही क्लासी लुक आया है किचन में। और यहाँ हमने टैंडम बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग है, और सारे ही टैंडम में हमने ट्रॉलीज एंड पुल आउट्स ये सब टैंडम में दिया हुआ है। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा गैजेट यूनिट, टॉल यूनिट, पैंट्री कम गैजेट यूनिट दिया है। नीचे भी बास्केट्स दिए हुए हैं और एंटायर किचन हैज़ अ लॉफ्ट, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट हुआ है। लॉफ्ट के नीचे ओवरहेड स्टोरेज है जिसमें प्रोफाइल डोर्स भी दिए हैं, प्लस हमने कुछ पैनल्ड डोर्स भी दिए हैं। नीचे प्रोफाइल लाइटिंग किया हुआ है जिसकी वजह से किचन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन हो रहा है। और यहाँ कुछ ओपन स्टोरेज भी दिया हुआ है ताकि जल्दी से जो चीज़ें हमें लगती है हैंडी होनी चाहिए वो यहाँ हम स्टोर कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग में यहाँ फॉल सीलिंग पूरा नहीं किए हैं, बट क्योंकि हमें फ़ैन और लाइट के लिए अच्छे से प्रोविज़न देना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लाई का पैनलिंग डाल के सीलिंग को कवर किया है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की लॉबी में हमने फॉल सीलिंग में एक्रिलिक जाली यूज़ करके अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट किया है, कोजी सा लुक दिया है इसके पैसेज को। और कमिंग इनसाइड यहाँ वार्डरोब दिया हुआ है, और जो वार्डरोब है उसको हमने फ्लूटेड लैमिनेट और सिल्क मैट लैमिनेट, ग्लॉसी लैमिनेट का कॉम्बिनेशन देके वार्डरोब का लुक क्रिएट किया है। वी हैव यूज सम टी पट्टीज एज वेल। और इस वार्डरोब के अंदर उनका ओल्ड एक ड्रेसिंग यूनिट था, उसको वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज इट वॉज वेरी गुड एंड उसमें स्टोरेज काफ़ी था, तो हमने ये वार्डरोब में ही उसको मर्ज करके वो ओल्ड ड्रेसिंग यूनिट को भी यूज़ किया है। और यहाँ आप देख सकते हो सीलिंग में एक अच्छा सा कर्व्ड लुक दिया है ताकि मास्टर बेडरूम का अलग से फील आए। और बेड के बैकड्रॉप में हमने वॉलपेपर और 3D MDF बोर्ड का यूज़ किया है, प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन किया है जो कि बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है। ये उनका ओल्ड बेड था जिसपे एक्चुअली इसमें हेडबोर्ड भी था, बट इट वाज नॉट लुकिंग वेरी गुड विद दिस न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कलर थीम, तो उसको मैच करने के लिए हमने ऊपर से इसको एक हेडबोर्ड जैसा फील दिया है अच्छे से कुशन कवर डाल के। और एज यू कैन सी द अपहोल्स्ट्री एंड ऑल द थीम इज इन अ लाइट पाउडर पिंक कलर जो कि हमारे क्लाइंट की चॉइस है। और यहाँ के ब्लाइंड्स, यहाँ एक स्टडी टेबल दिया हुआ है छोटा सा कॉर्नर में, और ऊपर ओवरहेड स्टोरेज विद प्रोफाइल ग्लास डोर, और नीचे भी एक ड्रॉवर दिया हुआ है। और ये
कोजी सा छोटा सा स्टडी। ये फ्लैट जो है ये मतलब इस फ्लैट का हमने रिनोवेशन वर्क किया है, तो यहाँ के सारे ओल्ड डोर्स और डोर फ्रेम्स को हमने रिनोवेट करके सारे डोर्स का लुक चेंज किया है। वी हैव यूज्ड सिल्क मैट लैमिनेट्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क लैमिनेट्स, जिसकी वजह से एक अच्छा मॉडर्न लुक आया है विद सम टी पट्टीज एम्बेडेड, जिससे कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं डोर्स। और ये किड्स रूम है, दिस इज़ द किड्स रूम। और किड्स रूम में आते ही साथ यहाँ हमने मंदिर दिया है, और मंदिर के डोर्स जो है वो हमने कॉम्बिनेशन लिया है ग्लास और प्लाई लैमिनेट का। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल बेल्स हियर, तो मंदिर का लुक बहुत एनहांस कर रहे हैं ये बेल्स। और यहाँ पर वार्डरोब है, वार्डरोब इज इन वेरी नाइस वुडन एंड लाइट ब्लू फ्लूटेड लैमिनेट। और यहाँ स्टडी टेबल दिया है, स्टडी टेबल में ओवरहेड स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा स्टडी टेबल यहाँ क्रिएट हो रहा है। एक अच्छा सा टेबल, वर्किंग टेबल मिला है जिसमें ड्रार्स दिए हुए हैं। और यहाँ नीचे प्रोफाइल लाइटिंग भी किया हुआ है, जिससे कि व्हाइल वर्किंग द प्लेस इज़ वेल इल्यूमिनेटेड। फिर यहाँ हमने एक बेड दिया है, तो एज यू कैन सी द होल कलर थीम इज़ वेल मेंटेन्ड। तो हमने वॉलपेपर, हेडबोर्ड, लैमिनेट्स और जो ब्लाइंड्स हमने लिए हैं रोमन ब्लाइंड्स, उस सबको हमने काफ़ी अच्छे से मैच करके एक अच्छा कलर थीम मेंटेन किया है इस रूम में, विच इज़ गोइंग वेरी वेल। दिस इज़ द पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम में हमने जो उनका ओल्ड फर्नीचर था उसको ही रिफर्बिश करके यूज़ किया है। उनका एक बेड था, ओल्ड बेड, उसको हमने ऐसा प्लेस किया है कि इस डेकोर से सब कुछ मैच हो गया है। और हमने इस वॉल को हाईलाइट किया है विथ वॉल ट्रिम, वॉलपेपर एंड फ्लूटेड शीट। और यहाँ पे हमने एक ओल्ड वार्डरोब को ही इस तरह से फिट किया है कि वो न्यू फर्नीचर और ओल्ड के साथ में कलर थीम भी मैच की है, और वो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराना फर्नीचर यूज़ किया है, वो अच्छे से मर्ज हो गया है हमारे नए इंटीरियर्स के साथ में। और यहाँ पे क्योंकि वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट की जगह नहीं थी, तो यहाँ हमने एक बड़ा लॉफ्ट दिया है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस क्रिएट हुआ है। और हमने लॉफ्ट के नीचे भी प्रोफाइल लाइटिंग प्रोवाइड किया है। और यहाँ का फॉल सीलिंग 2 लेवल फॉल सीलिंग है, और उसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट्स, फिर स्ट्रिप लाइटिंग भी यूज़ किया है, पैनल लाइट्स भी यूज़ किया है। तो एक बहुत अच्छा लुक आ रहा है रूम का इस फॉल सीलिंग से। स्टोरेज फॉर ऑल द सन्ड्री थिंग्स, जैसे वॉशिंग के लिए हमें वॉशिंग पाउडर लगते हैं, हमारी झाड़ू ब्रूम होती है, उसको स्टोर करने के लिए कहीं जगह होनी चाहिए प्रॉपर, ऐसे क्लाइंट की इच्छा थी। तो यहाँ इस पैसेज में हमने वॉशिंग मशीन के पास में ये स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे सारे सन्ड्री आइटम्स वो स्टोर कर सकते हैं।